وطن کے 4 محافظ بھی فرض پر قربان. شہداء میں سپاہی محمد اسماعیل، محمد شہباز، راجہ وحید احمد اور محمد رضوان خان شامل. بھارت باز نہ آیا، کنٹرول لائن پر پھر اشتعال انگیزی. رکھ چکری سیکٹر میں گولہ باری، شہری آبادی کو نشانہ بنایا. معمر خاتون زخمی، پاک فوج کا ازلی دشمن کو منہ توڑ جواب. پاکستان عارف علوی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی، ان تینوں افراد نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی. اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے راضی کریں. جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، اس دھرنے میں بھی امن کمیٹی کے لوگوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور وہاں تقریریں بھی کی. جے آئی ٹی کے آفٹر شاکس، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کو جھٹکے. تحریک انصاف کا امن کمیٹی سے رابطہ تھا. 3 ارکان کو کمیٹی کی پارٹی میں شمولیت کا ٹاسک دیا گیا. 2011 میں عمران خان اور حبیب جان کی ٹیلی فونک گفتگو کا بھی دعویٰ. سعید غنی کے سنگین الزامات کے بعد سندھ کا سیاسی پارا ہائے. علی زیدی صاحب، جن کو میں ایک وہ چول کہتا تھا، اس پہ اعتراض کرتے تھے، لیکن انہوں نے ثابت اپنے آپ کو کیا ہے کہ وہ چول نہیں ہے، وہ مہا چول ہے. مطلب یہ کہ وہ چولوں کے بھی سردار ہیں. علی زیدی بے وقوفوں کے سردار، ذوالفقار مرزا لیاری میں بدامنی کے ذمہ دار. سعید غنی کا فہمیدہ مرزا کو جتوانے کا بھی الزام. حلیم عادل شیخ نے بے ضابطگیاں مان لی، امید ہے اعترافی بیان دیکھا جائے گا. ناصر شاہ کی پریس کانفرنس. نیب تحقیقات کے دوران پی ٹی آئی کی صوبائی صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ. یہ 256 ایکڑ جو زمین حوالے کر دی کہ ساری جہان کی کٹھی کر کے، میری صرف 4 ایکڑ زمین جو میرے نام ہے، باقی جس کی زمین ہے، جہاں تک مجھے معلومات، میں نہیں کہتا کہ جی مجھے کچھ نہیں، مجھے معلوم ہے اس کا بھی ایک پیپر لیز ہے. اینٹی کرپشن نے ایک بہت بڑا پلندہ میرے خلاف الزامات کا بنایا. حلیم عادل کو سلطانہ ڈاکو بنایا اور وہ چلے گئے کہ جی ایف آئی آر داخل کی جائے. پھولن دیوی کے کہنے پہ سلطانہ ڈاکو بنا دیا مجھے. سندھ میں ہر کام پر 52% رشوت مقرر. آنٹی کرپشن نے اینٹی کرپشن کو پیچھے لگا دیا. حلیم عادل شیخ کا جواب. پریس کانفرنس میں پھولن دیوی کا بھی تذکرہ. سائیں سرکار کی لوٹ مار بے نقاب کرتے رہیں گے. فردوس شمیم نقوی کا پیپلز پارٹی کے خلاف نیب جانے کا اعلان. کرپشن کی کہانی تو جب کھلے گی سندھ کی، تو نیب میں ہم بھی ایک کمپلینٹ داخل کرنے جا رہے ہیں کہ پوری سندھ گورنمنٹ کے خلاف میں اب ایک کمپلینٹ داخل کروں گا کہ انہی نے سندھ کو برباد کیا، انہی نے پیسے لوٹے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اب نیب سندھ جو ہے وہ کیا ایکشن لے. منشیات فروش صوبائی وزیر نے اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی. عزیر بلوچ برسوں سے زیر حراست ہے، اسے استعمال کرنے والی طاقتور سیاسی شخصیات کو کٹہرے میں لانا چاہیے. وزیر بحری امور علی زیدی کا جواب. ایک انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی نہیں ٹریٹ کرتے، صوبے کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے. پہلا سال آپ کا آتا ہے تبدیلی کا، کوئی کووڈ نہیں تھا، کوئی سیلاب نہیں آیا، کوئی قدرتی آفت نہیں آئی سوائے پی ٹی آئی کے. گلگت بلتستان میں جو ویکسین نہیں استعمال کرنی تھی، کوئی جو ڈسٹروائے کر دینی تھی، وہ استعمال ہوئی. اس سال زیادہ کیس اس کے ہوئے ہیں. موجودہ حکومت کے پہلے سال ملک میں تحریک انصاف کے سوا کوئی آفت نہیں آئی تھی. جس طرح وفاق سندھ کو ٹریٹ کرتا ہے، ایسے تو انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی نہیں کیا جاتا. ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں، اسی لیے برے ہیں. ٹڈی دل کے معاملے پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی. مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس. کے الیکٹرک بورڈ میں صوبائی ارکان کی شمولیت کا مطالبہ. گلگت بلتستان میں ناقابل استعمال پولیو ویکسین کے استعمال کا الزام.
हुकूमत का काम घर बनाना नहीं है, हमारा काम है फैसिलिटेट करना। इस किस्म का कंस्ट्रक्शन पैकेज पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। जितने इन्वेस्टर्स हैं वो अगर अपने जो भी उनकी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको भी ऑर्डर में लाना चाहते हैं, उसको अपने ब्लैक पैसे को वाइट करना चाहते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि वो इस इंडस्ट्री में आए, इन्वेस्ट करें। हुकूमत का काम घर बनाना नहीं, सहूलतें फराहम करना है। तामीरात के शोबे में तारीख का बेहतरीन पैकेज दिया, रुकावटें दूर करने के लिए इदारा भी बना दिया। सरमायाकार मौके से भरपूर इस्तेफादा करें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के वार बरकरार, वायरस मजीद 74 जाने ले गया। मुल्क भर में 2,48,872 मरीज, सिंध में 1,03,836, पंजाब में 86,556 अफराद मुतासर, खैबर पख्तूनख्वा में 30,078 और बलूचिस्तान में 11,157 केस। सिंध में एक और रुकन असेंबली कोरोना का शिकार, हीर सोहो का टेस्ट मुस्बत, खातून MPA के 3 बच्चे भी मुतासिर, घर पर ही करंटीना कर लिया। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा मूसी वायरस के बाइस अस्पताल मुंतकिल। ठंडी हवाएं, कहीं पुआर कहीं बोछार, शहर शहर बादलों के डेरे। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और पतोकी में वक्फे से बारिश। बागों के शहर में कौस व कज़ह के रंग। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची में भी बादल आ गए। शारा फैसल, तारिक रोड, एयरपोर्ट और मलीक के इलाकों में रिमझिम, बूंदे गिरते ही मौसम खुशगवार। बच्चन खानदान कोरोना की जद में। 77 साल भारतीय अदाकार अमिताभ, बेटे अभिषेक के बाद बहू और पोती का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। अमिताभ की अहलिया जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट मनफी। अपनी बरादरी से भी अपील करते हैं कि वो तहरीक आज़ादी की भरपूर हिमायत करें। आज हम मुश्किल तरीन हालात में यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई 1931 को जब नमाज जुमा का वक्त करीब आया, मजमे से एक शख्स आज़ान के लिए खड़ा हुआ तो महाराजा की पुलिस ने उसे बंदूक का निशाना बनाकर मार डाला। आज़ान को मुकम्मल करने के लिए 21 और लोग खड़े हुए और सब शहीद हुए। उन शहदा ने आज़ादी की खातिर अपनी जान दी। शहदा का आज़ादी का ये मिशन आज तक मुकम्मल नहीं हुआ है। शहदाए कश्मीर की याद में हम एक मरतबा फिर इस अज़्म का यादा करते हैं कि हम आज़ादी जम्मू व कश्मीर के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे ताकि वो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक अपना हक़ खुद इरादियत हासिल कर सकें। हम बैनुल अक़वामी बरादरी से पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो तहरीक आज़ादी कश्मीर की भरपूर हिमायत करे और भारत की दहशतगर्दी की मशीनरी को मिसमार करने में हमारा हाथ बटाए। उधर भारत बाज नहीं आ रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर इश्तियाल अंगेजी की जा रही है। भारतीय फौज की रकचक्री सेक्टर में गोलाबारी और शहरी आबादी को एक मर्तबा फिर निशाना बनाया गया है। भारतीय फौज की गोलाबारी से किरनी गांव की रिहायशी मोअम्मर खातून जख्मी हुई हैं, जबकि पाक फौज ने अज़ली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, कहिएगा इस इश्तियाल अंगेजी की कार्रवाई में जो खातून जख्मी हुई और इसके अलावा क्या मामलात रहे वहाँ? जी बिल्कुल, ये खातून जख्मी हुई है और भारत की जानिब से जो है वो मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जो है वो जारी है और दानिस्ता सिविल आबादी को निशाना बनाने का भी सिलसिला जारी है। साल 2020 में अब तक भारतीय फौज की जानिब से 1623 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मुआहदा है, सीज फायर मुआहदा, उसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई है। आज भी फायरिंग की गई जिससे एक जो है मुअम्मर खातून जो है वो जख्मी हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। उधर शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 नौजवान भी वतन पर कुर्बान हो गए। जामे शहादत नोश करने वालों में सिपाही मोहम्मद इस्माइल खान, मोहम्मद शहबाज, राजा वहीद अहमद और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं।
आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। कराची में दूध महंगा बेचने पर इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया गया है और सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट करें कि इस कार्रवाई के बाद फार्मर्स की एक बड़ी तादाद गुज्जर डेयरी पहुंच गई है। जौहर से गिरफ्तार किया गया बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं, तफसील जान लेते हैं। बिलाल, कहिएगा, ये कार्रवाई कर ली गई है, इस वक्त गुज्जर डेयरी के बाहर क्या सूरत हाल है और कराची पुलिस इंतजामिया का क्या इस पर बयान जारी हुआ है? जी बिल्कुल, ये दूध की कीमतों में असपुत नोटिस और इजाफे के बायस जो है इंतजामिया हरकत में आई है और असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल है मोहम्मद अली गोपांग, उन्होंने इनकी डेयरी पर छापा मारा है इंतजामिया के हमरा और इनकी जो दूध की डेयरी है उसको सील कर दिया और इन्हें अपनी तहवील में लेकर मुंतकिल कर दिया गया है। हमारी इस सिलसिले में पुलिस हुकाम से बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि जिले इंतजामिया से इनकी मुशावरत जारी है और अगर वो हमारे हवाले करेंगे तो हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे। ताहम इस वक्त भी जिले इंतजामिया की तहवील में है शाकिर गुज्जर और उनसे तमाम तर तहकीकात की जा रही है रेट्स के हवाले से, दूध की कीमतों के हवाले से कि किस तरीके से उन्होंने खुद साख्ता ये कीमतें जो हैं वो बढ़ाई हैं और बढ़ाने के बाद जो आवाम को जिसमें काफी महंगाई हुई थी दूध में उस पर तहकीकात की जा रही हैं। हुक्काम का कहना है कि जैसे ही जिले इंतजामिया राब्ता करती है और हमें आगाह करती है, जैसे ही जिले इंतजामिया जो कहेगी उस पर अमल जो पैरवी है उसकी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल नसीर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिंध के वज़रा एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर बरसे और अली जैदी को बेवकूफ़ों का सरदार करार दिया। सईद गनी कहते हैं कि फहमीदा मिर्जा को सिंध से जितवाया गया। हबीब जान ने दावा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अली जैदी हमारी हिमायत के बगैर कराची नहीं आ सकते थे। कौन सच्चा कौन झूठा, JITs का तूफान थम ना सका। जियालों की खिलाड़ियों पर जमकर तनकीद। सईद गनी बोले अली जैदी ने नॉन इश्यूज पर शोर मचाया, अवाम का ध्यान हटाया। PTI और अमन कमेटी का गठजोड़ था। जिस तरह अली जैदी साहब जिनको मैं एक वो चवल कहता था उस पर एतराज़ करते थे, लेकिन उन्होंने साबित अपने आप को किया है कि वो चवल नहीं है, वो महाचवल है। मतलब ये कि वो चवलों के भी सरदार हैं। हबीब जान ने उन तमाम बातों की तस्दीक की है कि कराची में होने वाले PTI के जलसे अमन कमेटी की वजह से कामयाब हुए और उसमें उनके लोग शरीक होते रहे। सईद गनी ने दावा किया कि फहमीदा मिर्जा को सिंध से जितवाया गया। उन्होंने कहा लियारी में जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार जुल्फिकार मिर्जा हैं। जुल्फिकार मिर्जा तमाम बातों का खुद एतराफ कर चुके हैं। जुल्फिकार मिर्जा जिनको ये साहब कहते हैं वो तो हो रहे हैं। 2015 में एक TV इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि भाई ये जो सारी चीज़ें आपने की थी जब आप वज़ीर दाखिला थे